This place is so beautiful कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी सारी जिंदगी यहीं गुजार दूं। I'm here surrounded by these beautiful mountains and river rafting is one of the things जो कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट आकर यहाँ करते हैं। नॉम चॉम्स्की जो हैं वो ये समझते थे कि शायद न्यूक्लियर बम जो हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है, बट लेटर ऑन अभी उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त क्लाइमेट चेंज जो है वो न्यूक्लियर बम से ज़्यादा बड़ा थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए। मैंने पहले से बहुत मुश्किलों के साथ इस सफ़र का आगाज़ किया है बेटा, और आज ये सफ़र लोगों के सामने रंग लाया है। और अगर राफ्ट कैप्साइज हो गया तो आप बचाएंगे? मैं नहीं बचाऊंगा मैम, ये एज अ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में डेथ और इंजरीज का हमेशा रिस्क होता है। We have to take this raft there, और ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है, मतलब कोई रास्ता रोड नहीं बनी हुई कि हम जाएंगे वहां से। We did it! Oh, what a breathtaking view! A new morning among these beautiful valleys. और जैसे जैसे मैं अपने सफर में आगे बढ़ती जा रही हूँ, मैं अपनी एडवेंचर बुक में नई से नई मेमोरीज ऐड करती जा रही हूँ। Literally, this place is so beautiful कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी सारी जिंदगी यहीं गुजार दूं। But I can't do that because I have to leave this place and go ahead to explore more. Right now I am at the height of 9,000 feet और ये है Eagle's Nest का terrace. So I'm here starting my morning, मगर यहाँ से मुझे आगे की जानिब बढ़ना है and my breakfast is ready. But आज जो मेरा breakfast है उसकी खास बात ये है कि I'm not having today's breakfast alone. कल रात actually when I was just passing through the lobby, I met a personality. She is from a place which is closest to Pakistan's heart and that is China. और जब जोई से बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि वो पाकिस्तान में एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, बल्कि 5 दफ़ा आ चुकी हैं। So we get along really well और मैंने उनको कहा कि please join me in the morning breakfast के ऊपर। So she's here with me and I have one more personality जो कि पाकिस्तान टूरिज्म को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं, Mr. Muhammad Ali. So they both gonna join me over the breakfast there. Come with me. Hello friends. Hi Veena, good morning. Good morning, good morning. भाई हमारी दोस्ती तो कल रात से ही हो चुकी है. We have become like sort of best friends. But I wanted to share कि जो इनकी बातें हैं वो आपके साथ भी share करो. So I'm here right now. So how are you doing, Zoe? Yeah, wonderful. Perfect day here. Yeah. Thank you too for inviting me to have breakfast with you. Yeah, thank you that you gave me your time. Zoe not once, twice, 5 times to Pakistan. So what brought you here? Actually, I love Pakistan very much. The first time I came, it was 2005, and I came repeatedly, and it's already my fifth time. So Zoe, not once, twice, but 5 times. Why 5 times? Oh yeah, you know I love Pakistan. Actually, Pakistan is the first foreign country I've ever traveled to. So I came repeatedly, and it's already the 5th time. Yeah. So only this place, or have you just got a chance to visit other places? No, many places all over the Pakistan. You know, the first time I spent almost 1 month here, so I traveled all around Pakistan from north to south. Yeah. So what is your most favorite place so far? Yeah, I have to say it's just here, just here, Eagle's Nest. Yeah, you see, it's the world standard view here. Yes. You can see from here, like the topest mountain on the earth. It's amazing, and we can have breakfast here. Is there any place else in the world you can enjoy this kind of What could be more beautiful than having breakfast here? Such a beautiful place.
अच्छा, हमारे साथ मोहम्मद अली साहब भी हैं। सर, द वे यू आर प्रमोटिंग पाकिस्तान टूरिज्म अक्रॉस द ग्लोब, मतलब लुक्स लाइक मोर लाइक योर पैशन। कुछ बताइए ना अपने पैशन के बारे में। मैम देखिए, पाकिस्तान जो है, आई बीन टू सो फॉर 86 countries. And to be honest with you, Pakistan is the only country which has huge potential in tourism. If we talk about adventure tourism, there are 14 mountains in the whole world which are above 8,000 meter or about 26,000 feet. Out of 14, we got 5 in Pakistan, including second highest mountain on earth, which is called Mount K2. K2 is called also Mountain of Mountaineers, 8,611 meter above sea level. और उसके अलावा आउटसाइड पोलर रीजन हमारे पास लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स हैं। बलतोरा ग्लेशियर 68 किलोमीटर लॉन्ग है। उसके अलावा ब्याफ इस्पर ग्लेशियर, ये आप देख रही हैं, आपकी जो सामने वादी है, नगर की वादी, इसकी दूसरी तरफ बल्तिस्तान की वादी है। तो मशहूर ट्रैक वहाँ बल्तिस्तान से शुरू होता है, शिगर से होते हुए ऑल द वे टू ये आपके सामने हिस्पर वैली यहाँ तक आता है। उसके अलावा हम कल्चर टूर्स में बात करें तो हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो मकामात हैं, ख़ास तौर पे मोहनजोदाड़ो, जो कि 5000 साल कदीम है, और उससे भी अगर थोड़ा सा पहले जाएं तो मेहरगढ़ की सिविलाइजेशन जो है वो 7000 साल कदीम है। उसके अलावा अगर आप आ जाएं फर्दर डाउन हड़प्पा की तरफ, तो वहाँ पे हमारे पास 10,000 साल कदीम हड़प्पा की जो हमारे पास जो म्यूज़ियम और बाकी जो हड़प्पा वैली की सिविलाइजेशन है। अगर आप मुल्तान में जाएं तो जो हमारे पास सूफी श्राइन्स हैं। फर्दर डाउन आप जाएं अपना बहावलपुर में, जो वहाँ पे फोर्ट्स हैं हमारे पास, दिरावर फोर्ट जो कि बहुत मशहूर है, जहाँ पे कैंपिंग की जा सकती है, बॉन फायर के इवेंट्स किए जा सकते हैं। मशहूर कार रैली भी वहाँ पे होती है जिसको चोलिस्तान डेजर्ट रैली कहा जाता है, जिसमें दुनिया भर से लोग आते हैं। उसके अलावा अगर आप फर्दर नीचे जाएं तो सिंध के अंदर जो रानी कोट का फोर्ट है, विच इज़ इक्वल टू एक फोटोकॉपी है, यानी दीवार चीन की। तो जो पाकिस्तानी हजरात जो अफोर्ड नहीं कर सकते बीजिंग में जाके दुनिया का जो अजूबा है दीवार चीन जाना, वो रानी कोट फोर्ट जाके उसको एंजॉय कर सकते हैं, जो कि इक्वल टू दीवार चीन है। सर, यू आर डेफिनेटली वेरी वेरी पैशनेट अबाउट टूरिज्म एंड विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस कि ये जो शोला है ये इग्नाइट कैसे हुआ था। बट बिफोर दैट, ज़ोई, since you have been here 5 times, so would you like to tell us about your activities, that what you have been just doing during these, visits and stay over here? Pakistan doesn't only have like a landscape sightseeing like this. Pakistan enjoys like what Ali had mentioned, had rich culture, civilization here. Yes, and the Indus civilization is here. It's not in India. And the Buddhist statue, Buddhist art is originated from here. And Ali mentioned, here we are, the best view in the world. So after I traveled this 5 times, I think I will travel to here more and more. Yeah, there's still lots of places to explore in Pakistan. And actually, I want to bring lots of my friends to see here. The best thing above all in Pakistan is not the view, not the culture. Actually, it's the people here. As a Chinese, how much welcome, hospitality I can receive while I was here. Every time people ask you where are you from, they might thought I'm from Korea, South Korea, like Japan or Vietnam. Whenever I said I'm from China, was proud, and they treat me like sisters. Because there are so many examples of our friendship and our love towards each other. Yes. And obviously it's very very precious. So I'm sure it's most likely naturally that you're gonna get warm welcome. Thank you, sir. Thank you for your time. And Zoe, thank you so much. And since we are friends, we have shared the numbers. We're gonna stay in touch. And in the end, I would like to say that Pak Chin Dosti. Oh, Zindabad. कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि जिंदगी में आप कोई नई चीज़ करने का सोचें, कोई एडवेंचर करने का सोचें और आपका दिल ना घबराया हो, आपको डर ना लगा हो? Obviously, adventure always scares you, but that is something that gives you, so much of energy that yes, you should do it. This is called river rafting. I guess you guys have heard about river rafting. अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो इस स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा
इनकरेज किया जाता है, बहुत सारे लोग ये करते भी हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस स्पोर्ट को बहुत ज़्यादा इनकरेज भी नहीं किया गया और बहुत कम जगहों पे की जाती है। बट सिंस आई एम हियर सराउंडेड बाय दीज ब्यूटीफुल माउंटेन्स एंड रिवर राफ्टिंग इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट आकर यहाँ करते हैं। रॉक क्लाइंबिंग है, स्कीइंग है, and then there's a river rafting too. And obviously, I'm not gonna do it alone. My entire crew and team is with me and they are eagerly waiting for me. So I gotta go join them. हमें तैयारी करनी है and then we're gonna get into the waters. Come with me. Let's talk to my team. I'm gonna introduce you to them. So hello guys. Atif, इंजमाम, how are you guys? भाई माइक दीजिए। इंजमाम, जी मैम। बताएं कुछ हमें यहाँ पर रिवर राफ्टिंग के बारे में, कितनी ज़्यादा मतलब होती है यहाँ पर, टूरिस्ट पसंद करते हैं। जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट दिस स्पोर्ट। बेसिकली ये वाइट वाटर राफ्टिंग होती है मैम। यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं, बहुत से टूरिस्ट इसको खेलने आते हैं हमारे पास। जिस तरह पाकिस्तान माउंटेन से रिच है, डिजर्ट से रिवर्स हैं, जिस तरह हमने रिवर्स को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया पाकिस्तान में। हमने माउंटेन्स एक्सप्लोर किए हैं, ग्लेशियर्स एक्सप्लोर किए हैं, लेकिन उनसे जो पानी आ रहा है उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जिस तरह हमारे पास वाइट वाटर राफ्टिंग है, कयाकिंग है। बेसिकली हम 2019 से इस स्पोर्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, इसको पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए। 2019 से too late ना? Too late but too early ना मैम। And it's never too late. फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको आगे लेते हुए आगे यहाँ तक। इसके 6 लेवल्स होते हैं, 1 to 6 होते हैं। बेसिकली जो बिगनर्स होते हैं, फैमिलीज होती हैं, हम उनको लेवल 1 and 2 कराते हैं। उसके बाद उनको ट्रेन करते हैं किस तरह पेडल यूज़ किया जाता है, किस तरह रिवर को नेविगेट किया जाता है, किस तरह रैपिड्स को रीड किया जाता है। ये सब चीज़ें पहले हम उनको बताते हैं। So what you're telling me is that you have a training center here too? Yeah. अच्छा, river rafting, like if you make a comparison, people around the world, they come here for rock climbing, skiing करने आते हैं, तो river rafting में भी उतनी ही दिलचस्पी है लोगों की, या it's just little less? अगर हम पूरे वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से देखें तो जो फॉरेनर्स आते हैं वो सबसे पहले आके हुंजा में रिवर देख के पूछते हैं कि भाई रिवर राफ्टिंग क्यों है। हाँ। और हमारे जो पाकिस्तानी लोकल टूरिस्ट होते हैं उनको बेसिकली इतना नहीं पता राफ्टिंग के बारे में। बोटिंग का पता होता है, जेट स्की का पता हो, लेकिन राफ्टिंग के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जिनको पता है वो आके यहाँ पे हमारे साथ राफ्टिंग करते हैं और वो बहुत इंजॉय करते हैं। अभी देखे ना कि हमने बाकायदा आप लोगों को तलाश किया, आप लोगों का इंतजार किया। We actually waited for them कि भाई राफ्टिंग करा दें। राफ्टिंग किए बगैर तो हम यहाँ से जाएंगे तो मजा नहीं आएगा, because राफ्टिंग is something is one of the key thing here. It's so exciting. खास तौर पे यहाँ पे जो वोटर्स हैं, पहाड़ों के बीच में पत्थरों के ऊपर से गुजरता हुआ पानी, that is where you just enjoy the most. Yes ma'am. So Inzamam, I guess the raft is totally pumped, huh? Ready है ना? नहीं मैम, अभी नहीं रेडी है। अभी 50% रेडी है, 50% आपने करना है। मैंने इसको और पंप करना है, आपने करना है। मैंने करना है? जी मैम, आप राफ्टिंग के लिए आई हैं तो आपने करना है। Okay, then ये माइक फिर आप पकड़े तो यहाँ से आप शुरू करें मैम। ओके भाई, हम तैयारी शुरू करने लगे हैं। अभी आप राफ्ट के चेम्बर में एयर भर रही है मैम। I'm gonna do it super quick, हाँ? देखो, yes. बहुत अच्छा कर रही है। ये देखो जरा। Okay. Done? So I have to. I'm still not done. बड़ा काम छोड़ के रखा है मेरे लिए। जी मैम, आपके लिए सारा काम हमने छोड़ा हुआ है। Okay. So Atif is also helping us out. पास आ जाऊं? जी। Okay. Got a little bit closer to you. Very nice. You're nice too. What are you doing to me? Every time I pump is, आतिफ जो है ना उसमें से हवा निकाल देता है मेरे से बदला लेने के लिए किसी चीज का। फिर करूं? So how do we check if it's ready or not? ये इस तरह होता है। This raft is ready, right? No, it's not ready. Not ready yet? No. क्या मतलब है? 10% आपके लिए रखा है। बाकी भी मैं करूंगी। आपने दो इसमें भाई भी की तरह करना है। बम्प।
पूरा का पूरा राफ्ट जो है ना, ये लोग ट्रिक से ना मुझसे पंप करवा रहे हैं। बेसिकली ये राफ्ट डिवाइडेड है 6 चेम्बर्स में। 1 2 यहाँ से वहाँ तक 1 ओके यस 2 2 3 and 4, नीचे जो फ्लोर है 5 5 और ये 6 चेम्बर्स। 6 चेम्बर्स सो एवरी चेम्बर का जो पंप करने का है वो अलग से अलग से है, और ये इसलिए डिवाइडेड है इन केस अगर आप One chamber fails. एक्सट्रीम राफ्टिंग करते हो तो हो सकता है, चांस है कि एक फेल भी हो सकता ओ है। यस। हो गया तो आपके पास 5 और ऑप्शन सो बेसिकली जो राफ्ट के चेम्बर्स होते हैं वो राफ्ट के इंजन्स होते हैं। ऐसा ही है। सो इफ वन इंजन फेल्स अनदर वन इज Another वर्किंग। one is- और अगर राफ्ट कैप्साइज हो गया तो आप बचाएंगे? मैं नहीं बचाऊंगा मैम, ये एज अ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में डेथ और इंजरीज का हमेशा रिस्क होता है। अगर डेथ और इंजरी इंजरीज का अच्छा एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में ये तो आपके साथ है ही है। अच्छा हम ये कर सकते हैं कि एज अ ट्रेन गाइड मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपने उस डेंजर से, उस इंजरी से कैसे सो बचना है। इफ दिस राफ्ट इज कैप्साइज्ड Yes. फिर क्या फिर what do I आपने do? सबसे पहले यही काम करना होगा। उससे पहले गाइड आपको बताता है आगे डेंजर है, आपने होल्ड ऑन करना है। जिस फॉर एग्जांपल आप यहाँ बैठी हुई हैं, ओके यहाँ आपका पाँव फिक्स होता है इस तरह, ओके ठीक है। यहाँ आपके एक हाथ में पेडल होगा। परफेक्ट। अगर राइड गाइड इन केस आगे कोई डेंजर है, कैप्साइज होने का खतरा है, कुछ भी है, हाँ। वो आपको कॉल देगा पीछे से। आपने करना ये है कि सबसे पहले आपका जो पेडल है हाँ। वो अंदर लेकर आना है, यहाँ पे फिक्स करना है। ओके सेकंड स्टेप आपने ये करना है कि इसको, इस रोप को होल्ड ऑन करना है और आपने अंदर जाना है इस तरह, ओके अंदर चले जाओ। अंदर चले जाना है। ओके इससे आप बच सकती हैं। यहाँ पे होंगी तो वो बम्प होगा और आप बाहर गिरेंगे, ओके परफेक्ट। इसलिए आप इधर आएंगी। और इन केस इससे भी कैप्साइज हो गया हाँ। तो एटलीस्ट आपका हाथ इस राफ्ट के साथ है। और जो हमारे साथ गाइड है सबसे पहले कैप्साइज में ये करेगा कि यहाँ से वो आएगा, हाँ। इसको वापस फ्लिप करेगा फ्लिप करेगा और सबको एक एक करके रिस्क्यू करेगा, अंदर बिठाएगा, फिर आगे जाएगा। ये है एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। राफ्टिंग शुरू होगी जब कैप्साइज होगा, उसके बाद गेम स्टार्ट है। नहीं आज तो कैप्साइज नहीं होने आज वाला तो ना? नहीं होगा, अच्छा आज तो नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है, हो भी सकता अच्छा है ना। अच्छा मैम? बोलो अच्छा बोलो अच्छा तो हम इंजमाम बोल सकते हैं। अच्छा बोलो। राफ्ट कैप्साइज हो गया, डेथ का खतरा है, ये इंजरी का सारी खतरा है। चीजें पहले से हम बताते हैं अपने सारे Oh जितने yes, भी I हमारे होते हैं। understand. अच्छा राफ्टिंग के लिए we are almost ready. I just have to wear our life jackets and just take this raft to the into the waters. Yeah. But I see that weather जो है ना वो थोड़ा शरारत कर रहा है. कर रहा So है। if weather gets like that, then is it safe to get into the waters or what? नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि वेदर का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है राफ्टिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल हम जा रहे हैं आगे से अपोजिट डायरेक्शन में, अगर विंड्स आ रही हैं हाँ. तो इसका ज़्यादा खतरा होता है, रिवर में ये फ्लो नहीं करता। और मुझे तो ऊपर काले बादल नजर आ रहे हैं. बस कुछ भी हो सकता है मैम, बारिश भी होगी, हवा भी आएगा, नीचे हम भी पानी में होंगे। आप कर क्या सकते चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से वापस चली जाऊँ अभी बारिश का नहीं पहला मैम, कतरा आपको राफ्टिंग कराए बगैर यहाँ से हम आपको जाने ही नहीं देंगे। चले तो shall we go? We have to take this raft into the water. यस, ये भी मुझे करना पड़ेगा. ये भी आपको करना पड़ेगा। चलो जी. कौन सा कलर सूट करेगा मेरी ड्रेस के साथ? ब्लू करेगा. रेड और ब्लैक पे ब्लू करेगा. Thank you. So it's mandatory that we wear life jackets. भाई जिंदगी बचानी है तो helmet is also very important. Could you? बारिश भी शुरू हो गई है. Guys, it's raining already. काले काले बादल हैं ऊपर. And are you guys? How are you feeling? Are you a little bit skeptical मौसम की वजह से? Yes. You are. Of course, yes, I am. So imagine if a professional rafter and a trainer is skeptical, तो मेरे जज्बात आप खुद ही इंटरप्रेट कर लीजिए कि क्या होंगे. So now tell me one thing कि अब सिर्फ हम 3 लोग हैं या there are other people too? हमारे साथ 2 और मेंबर्स होंगे, Okay. वो नीचे हैं ऑलरेडी। हम अभी राफ्ट लेकर उनके पास जाएंगे, वहाँ से हम अपना राफ्टिंग शुरू करेंगे। Perfect. So shall we go? यस, चलो जी. So we are all set and I'm gonna take my shades off because I don't want any lens between this beautiful views and my eyes. शुरू करते हैं. We have to take this raft into the waters. भाई कौन सी मुशक्कत करवानी है अब मुझसे? Bullet.
we are taking, we have to take this raft there. और ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है, मतलब कोई रास्ता रोड नहीं बनी हुई कि हम जाएंगे वहां से, इन्हीं पत्थरों से हमें जाना है. So wait. रुक जाए. I have to make a way. Guys, I don't know, where do I? Here. Yes. Okay. Here. Wait. Certainly. How do I get here? Wait. वाओ मैम, आप तो कमाल कर रही हैं. मैं वो जान लगा के राफ्ट को लेके जा रही हूँ, क्यों? बहुत एक्साइटेड है मैम आप, इसलिए. है ना? हाँ. आप ये देखें कि there is no way, I guess, but still we have to take this. Raft is about to land into the waters. Okay, here we are. ऊपर से लेकर यहाँ तक राफ्ट हम ले आए हैं. So now this is into the waters. By the way, इस शो ने मुझे कुछ और दिया हो या ना दिया हो, बट बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस ज़रूर दिए हैं और नई स्किल्स भी. सो आई गेस मुझे वैसा लग रहा है कि मैं शोबिस से हटके भी आई कैन अर्न मनी. You know what I mean? Yeah. इतनी सारी चीजें मैंने सीख ली हैं. Rock climbing, skiing, rafting. So, if you want to discover this beautiful Pakistan, keep watching Discover Pakistan with Veena Malik. Now, without any delay, we gotta start this, right? Oh, and here starts my rafting experience, which I'm sharing with you. So we are all set to go now. Ready? Forward. Very nice. Very nice. Forward. Forward. Very nice. Forward. Nice. Yeah. Forward. Yay. You know, moves और पानियों में, when you are not, attached with anything, किसी भी string के साथ, कुछ भी सिर्फ पानी के रमो करम पे होते हैं आप. This is. हाँ, सब लोग forward करें. Ready. Forward. Very nice. Forward. Left side. Back pedal. Left side. Very nice. Forward. Everyone. Yes. Come on, guys. 1, 2. Woo! And you're just so much into the nature. This is another exhilarating experience. You just feel so free. I have to follow the instructor. I have to enjoy, and I have to talk to you two guys. So it's sort of multitasking. Yes. But I tell you honestly, अभी इधर रोकते हैं. knowing काटे nature चन्ना या खोले. this close is such an exhilarating experience. Yay, guys! Woo! We did it! And by the way, actually, I guess I would say that I did it! Thank you so much. This is another extreme adventure that I have done it. And I'm so happy and so excited. And hopefully, I'm gonna come back again here and just repeat the whole thing, but on a higher level, right? So hopefully, when I come here next, I go till level 6, but definitely not till 7, right? Thank you guys. Let's get out of this raft
बिकॉज मुझे आगे भी जाना है एंड आई एम डन विद दिस एडवेंचर। So guys, this was it for now. मगर सफर जो हमारा अभी जारी है, I'm gonna take you to the next destination. Come with me. Guys, जिंदगी में हम कुछ भी करते हैं ना, that comes with a huge responsibility. Like अगर हम सिर्फ टूरिज्म की बात करें, जहाँ पर दुनिया भर से टूरिस्ट इन हसीन मनाजिर को देखने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं, वहाँ पर उन पर कुछ जिम्मेदारियाँ भी आयद होती हैं कि वो इस तरह की मेजर्स इख्तियार करें कि ये जो कुदरती हुस्न है इस इलाके का, ये भी बरकरार रहे और जो हमारा खित्ता है, जो हमारी ज़मीन है, जो हमारा ग्लोब है, उसको नुकसान भी ना हो। सिंस ग्लोबल वार्मिंग इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर ग्लोब, सो वक्त की ये बहुत अहम ज़रूरत है कि हम एको फ्रेंडली टूरिज्म को ना सिर्फ प्रमोट करें बल्कि अडॉप्ट भी करें। सो सिंस दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वकार मलिक साहब, जो कि जिनकी ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च है, और उनके साथ मौजूद हैं मेहरबान साहब, जो कि लोकल टाउन मैनेजमेंट को हेड करते हैं। तो आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। माइक दीजिएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भैया। मैं बिल्कुल ठीक। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है इट्स अ सीरियस थ्रेट, एंड सिंस हम देखते भी रहते हैं कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, टूरिज़्म के अलावा भी हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। सो हाउ रियल दिस थ्रेट इज़? ये इस वक्त नॉम चॉम्स्की के मतलब नॉम चॉम्स्की जो हैं वो ये समझते थे कि शायद न्यूक्लियर बम जो हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है, बट लेटर ऑन अभी उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त क्लाइमेट चेंज जो है वो न्यूक्लियर बम से ज़्यादा बड़ा थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए। 2 लाख से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, 2/3 ग्लेशियर्स जो हैं वो इस सेंचुरी के आखिर तक ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान में 7,000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं। नॉर्थ पोल के बाद दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पास इतने ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं। ग्लोबल वार्मिंग जब हम कहते हैं, ये ग्लोबल फिनोमेना कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें इंटरनेशनल ममालिक जो बैन ममालिक हैं वो उनका जो किरदार है वो इस सवाल से अहम हो जाता है कि इसके ऊपर ये जो इस वक्त 50-60 किलोमीटर का आप ऊपर गिलाफ एक देख रही हैं जो कि पूरी अर्थ के गिर्द है, ये गिलाफ जो है इसके अंदर पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं है। इसके अंदर नहीं है कि इस गिलाफ यहाँ से अमेरिका है और यहाँ से पाकिस्तान खत्म हो रहे हैं, ये हम सारा शेयर करते हैं। तो अगर यहाँ मैं धुआं फैला रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये हम सब शेयर कर रहे हैं। कोई इम्पैक्ट अगर मैं कंपैरिजन करूँ इसका बाकी शहरों से, पाकिस्तान से, तो ये यहाँ पर आपने इसको बड़ा बहुत एक फितरी जो हुस्न है उसको बड़ा प्रिजर्व करके रखा हुआ है। मतलब इस तरह से डैमेज जो है वो नज़र नहीं आ रहा। टूरिज्म का जो इम्पैक्ट है वो उतना, जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट है जो वो नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि इसके पीछे तो डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट होगी। इसके पीछे सबसे पहले जो हमारे हमजा के एल्डर्स हैं, जो अभी बहुत सारे हयात भी हैं, कुछ जिनकी रहलत भी हुई है, तो उनकी एक फोरसाइट है कि वो बहुत पहले इस राज को समझ गए थे कि हमें जब तक कलेक्टिव एक्शन नहीं होगा, जब तक कलेक्टिव विजडम का इस्तेमाल नहीं होगा, तो मुख्तलिफ़ किस्म के, ना सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग, अदर जो भी पॉपुलेशन बर्स्ट है, डिफॉरेस्टेशन है, इन सब चीज़ों के लिए उसका जो एक्शन होगा वो कलेक्टिव एक्शन ज़्यादा बामायने होगा। तो ये राज हुंजा वाले काफ़ी पहले समझ गए थे, हमारे बड़े समझ गए थे, तो उन्होंने हमें तोहफ़ों की शक्ल में हमें ऑर्गेनाइजेशंस दिए हैं। कमिंग बैक टू वकार साहब, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात की। हम सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा थ्रेट है कि मतलब हमारे आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ है, इट्स राइट नेक्स्ट टू अस, लेकिन सीरियसनेस जो है ना, जिस तरह से दिखानी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही। कौन सी मेजर्स हैं ऑन अ सीरियस नोट जिनको लेने की ज़रूरत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं। एक लेयर तो ये है जो कि बैनुल-अक़वामी जिस तरह हम बात कर रहे हैं उस तरह संजीदगी नज़र नहीं आती। अच्छा, लेकिन क्योंकि सर्वाइवल का इशू है तो यहाँ पे जो कम्युनिटी की सतह पे बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटेट बहुत ही अच्छा काम कर रही है कि वो रेस्क्यू जो है उसकी तरबियत दे रही है कि जब भी कभी इस तरह की कोई अफ्ताद आ पहुँचे तो आपने रेस्क्यू कैसे करना है, और 35,000 लोगों को वो रेस्क्यू की जो बुनियादी तरबियत है वो दे चुकी है। ये बहुत अच्छा काम है कि AH का।
इसके अलावा जो जीबी में 200 मराकज़ ऐसे हैं जहाँ पे ये एमरजेंसी किट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, एमरजेंसी सेंटर्स हैं, तो वो फौरी रिस्पॉन्ड करते हैं। अब मसला ये है कि जो जीबी का जो फिनोमेना जो इस वक्त नज़र आ रहा है पिछले 2 साल से, और इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है, वो है फ्लैश फ्लड्स। ठीक है, एकदम आते हैं और बगैर वार्निंग के आते हैं और किसी जगह से भी नमूदार हो जाते हैं और वो सारा कुछ तबाह कर देते हैं। और इसके साथ फिर एक और जो चीज़ जो कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है वो साइकोलॉजिकल है। ठीक है, इसमें मैंने क्योंकि सुसाइड पे काफ़ी काम किया, सुसाइडल आइडिएशन पे काम किया, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा, तो उसमें एक फैक्टर जो था वो ये भी था कि जो मुआशियात है, एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है आपका, वो फ्लैश फ्लड की नज़र हो जाता है, तो आपका जो फ्यूचर इनसिक्योर हो जाता है, फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ और ये फिनोमेना भी का होता है। तो मैयज़ की जहाँ तक बात है, मेरा ख्याल है कि एक बड़ी मज़ाक़ा खेज़ बात होगी वीना, आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं, जो मुल्क आज तक सिर्फ प्लास्टिक के बैग पे पाबंदी नहीं लगा सका, पाबंदी होती है वैसे ना, लेकिन एक होता है कि आप प्रोडक्शन पे पाबंदी लगाएं। ठीक है, जीबी में, हुंजा में ये जो एक तर्ज़े ज़िंदगी है, ये इतनी खूबसूरत और इतनी परफेक्ट है। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि ये पूरा का पूरा तरीक़ाकार जो है ना, द वे दीज पीपल आर लिविंग, इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट पाकिस्तान। जिंदगी बन जाएगी हम सब लोगों की, लिटरली। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। यहाँ से मैं बढ़ूंगी अपनी अगली मंजिल की जाने। कम विद मी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हुंजा की गलियों में चलते फिरते विमेन एम्पावरमेंट की मिसालें मुझे हर तरफ बिखरी हुई नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो मर्दों के शाना बशाना काम करती नज़र आती हैं। बल्कि बहुत सारी फील्ड्स तो ऐसी हैं जिसमें ख़वातीन मर्दों से भी आगे निकल चुकी हैं। बट हाउ दिस ऑल स्टार्टेड, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा होता है जो ट्रेंड सेट करता है और बाकी सभी उसको फॉलो करते हैं। तो मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ लाल शहजादी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक हूँ बेटा, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले भी यहाँ आई थी आपकी तलाश में, लेकिन आप यहाँ पर नहीं थी। मुझे फिर आना पड़ा दोबारा सफ़र करके, क्योंकि मैं आपसे मिलना चाहती थी। आपकी जो स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी, शेयर करना चाहती थी तमाम ख़वातीन के साथ, लड़कियों के साथ। तो आज मैंने आपको ढूंढ लिया, तो कुछ बताइए ना अपने सफ़र के बारे में। हाँ बेटा, मैंने जब ये सफ़र स्टार्ट किया था तो आपने सुना भी होगा, मैंने पहले से बहुत मुश्किलों के साथ इस सफ़र का आगाज़ किया है बेटा, और आज ये सफ़र लोगों के सामने रंग लाया है। अच्छा, जो स्पेशल डिशेज़ हैं, जो लाल शहजादी की स्पेशलिटी है, वो क्या क्या है? बेटा मेरी मेनू में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा छप शिरो बहुत मशहूर है बेटा। लोग इधर उधर खा के भी 4-5 साल पहले मेरे पाकिस्तान फूड पिजन वाले भी आके उन्होंने यहाँ सबका चेक करके आपका डिफरेंट है कि मुझसे रेसिपी ले गए थे बेटा यहाँ। अच्छा, एक तो आप छप शोरो बनाती हैं, दूसरी और क्या खासियत है? बेटा ये देखो, ये चीज़ चपाती मेरी अभी आपके सामने जैसे देखा था कि इसके अंदर ड्राई फ्रेश चीज़ है बेटा, काऊ का। मैंने क्रश करके अखरोट डाला है, पुदीना है, धनिया है, हरी मिर्च है। ये फट जाता है, गर्म करते हैं तो इस तरह बस हल्का सा बेटा लगाने के बाद ये हमारी हुंजा की ब्रूट कपिक हो गई बेटा। पेट में ज़्यादा देर तक रहता है बेटा, क्योंकि जब तो मतलब बहुत ज़्यादा देर तक पेट में रहता है, मतलब इसको खा के भूख बहुत देर बाद लगती है। हाँ, क्योंकि दूध से किसी को एलर्जी है तो अलग बात है, अदरवाइज इस फूड से कोई मसला नहीं। ये देखें जी, दिस इज चीज चपाती, चीज रोटी, ब्रूस बेरिकुस हमारी जबान में क्या? ब्रूस बेरिकुस कहते हैं बेटा। ब्रूस बेरिकुस। हाँ, वाओ, ब्रूस बेरिकुस। सो दिस लुक्स डिलिशियस। हाँ, ओह माय गुडनेस। जीबी और हुंजा की सिर्फ सुबह ही चमकीली और खूबसूरत नहीं होती है, बल्कि यहाँ की शामें भी बहुत ही हसीन होती है। और उन शामों पे जो बिखरा हुआ है यहाँ की सकाफत का रंग है, उसको देखने के लिए न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं एंड दे एंजॉय सो मच। सो ऐसी एक शाम का मंजर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। कम विद मी।
यहां से शुरू होती हैं आंध्रा पोएगा की सीढ़ियां 1660 स्टेयर्स। यहां का जो 360 व्यू है ना, ओह दैट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग। ये जो जगह है, अगर मैं नजर दौड़ाऊं अपने आसपास तो जन्नत के नजारों से कम रहेगी।